Okay, good evening everyone. How are you all? Good evening, sir. We are fine, sir. And what about you? I'm also fine. Thank you. Thank you. Let us start the session for today of your English subject. Let me open the book. But in our last session, till our last session, already we have completed the grammar junction as well as the grammar station section of the chapter number 1. Yes, sir. So let me know, first of all, let me know, is there any query? Is there any problem from that section? No, No, sir. sir. Shall we move No, ahead? sir. Shall we move ahead on the next section? Yes, sir. Yes, sir. So after grammar section, but if anybody are having any issue, they can raise their hand. Any of the students? Okay. So beta, moving ahead on the next section, that is the writing junction. What I'll do, writing junction will I'll send you a video. I'll send you some of the instruction in your WhatsApp group. You all need to go through that instruction and you all need to write your own story with the help of this section. I'll let you know that how you need to do in the next class. In today's class, I'm going to cover the speaking junction as well as the listening junction. So what is there in the speaking junction? First of all, we have to go through the content, and after covering, if we complete the speaking junction one time, then we can go through the listening junction. There we would be listening a script, and based on that script you all need to give your answer for some of the questions. So let us move ahead. Let us start the speaking junction first. But in this section, what is there? Madam Walmunde returns home and recounts her experience at Alabri to Monsieur Walmunde. Let us see what she says. आपको पढ़ना है कि आखिर मैडम वालमुंडे जब अपने घर रिटर्न होती हैं एलेब्री से, यानी जो डेजरी है उससे मिलने के बाद जब वो वापस घर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने घर अपने हस्बैंड से मिली होंगी, तो उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बातचीत हुई, उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे whatever we are going to read, that is the conversation with Madam Walmunde and her husband. So let us read. Beta Abhishek, can you read this one? Yes, sir. Hello, dear. Did you meet Desiree? I sure did. She is recovering well. You seem worried. What is the matter? Well, it is the baby. It doesn't appear normal. I have a fear it might be black. But how can that be? You know how? We have raised Desiree as our own child, but we don't Yes, know Abhishek, who stop. her parents are. Abhishek, stop. Beta, let me explain one by one so that it can be explained meanwhile, in the meantime. Hello, dear. Did you meet Desiree? Actually, Madam Walmunde's husband. Whenever Madam Walmunde come back to her home, her husband asked her, "Hello, dear. Did you meet Desiree? क्या आपने डेजरी से मिला?" I sure did. She is recovering well. वो हाँ I sure did मैंने मिला कहने का मतलब she is recovering well. वो अच्छे से रिकवर कर रही है, बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, अच्छे से रिकवर कर रही है. You seem worried. आप थोड़ा सा घबराई हुई दिख रही हैं. आप थोड़ा घबराई हुई दिखती हैं. What is the matter? आखिर मामला क्या है, मैटर क्या है? Well, it is the baby. It doesn't appear normal. Well, it is the baby. जो मैटर है वो क्या है? बेबी है, बच्चा है. What is the matter? It doesn't appear normal. ये जो है इसका appear यानी जो ये normal नहीं दिखता, normal नहीं appear हो रहा है. I have a fear it might be black. मुझे डर है कि ये शायद black हो सकता है, ये शायद black category से आ सकता है. But how can that be? लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? उसके हस्बैंड ने बोला. You know how? आपको पता है कैसे? We have raised Desiree as our own child, but we don't know who her parents are. हमें पता है, you know well, तुम्हें पता है आखिर ये कैसे. We have raised Desiree, हमने डेजरी को अपने बच्चे की तरह पाला है, बड़ा किया है. But we don't know who her parents are. लेकिन हमें ये नहीं पता आखिर उसके पेरेंट्स कौन है.
दैट इज ट्रू. व्हाट डज अरमन हैव टू से अबाउट दिस? हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अरमन का क्या कहना है इसके बारे में? क्या कहना है अरमन का? I did not meet him. I did not meet him. Desiree says he is very happy that is a boy. She herself is a static. यहाँ पे क्या कहते हैं? I did not meet him. मैं उससे नहीं मिली. ये मैंने बालमुंडे बता रही हैं. मैं उससे नहीं मिल पाई, मैं उससे नहीं मिली. But लेकिन Desiree says, Desiree कह रही थी, he is very happy. वो बहुत ही खुश है. That it's a baby. क्योंकि ये एक बॉय है, बेबी बॉय है. She herself is a statue. वो स्वयं ही आनंदित थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी. Well, that is a relief then. बहुत अच्छा. तब तो ये एक तरीके से मतलब सुकून है इस बात के. तब तो ये राहत की बात है. As long as both of them accept the child. जैसे जैसे समय बीतेगा, they will accept the child. वे बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अपना मानने लगेंगे. It should be all right. और मतलब ये अच्छा ही होगा. I don't know about that. मुझे नहीं पता उसके बारे में. I think we should meet Arman and see how he feels about this. मैडम वालमिंडे बोलती हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में. I think मुझे लगता है we should meet Arman. हमें अरमन से मिलना चाहिए and see how he feels about that. और ये देखना चाहिए आखिर वो इसके बारे में कैसे फील करता है, कैसे सोचता है. Yes, that is a good idea. हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. ये बहुत ही अच्छी बात है. Let's pay them a visit sometime soon. चलो जल्दी हम उसे वहाँ की विजिट प्लान करते हैं. sometime soon, बहुत ही जल्दी. यानी वहाँ हम जल्दी चलते हैं. किससे मिलने के लिए? एक तरीके से अरमन से मिलने. तो this conversation is between the Madam Balwinde and her husband. What you all need to do? You all need to prepare a video where you are trying to share your memorable experience with your partner. What do you all need to do? You need to arrange a partner. Let's say कि दो स्टूडेंट्स आपस में मिल सकते हैं. आप लोग चाहे तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू या जूम ऐप के थ्रू ही. नॉट ओनली द जूम ऐप, आप लोग चाहे अगर स्वयं से अकेले या घर पे कोई और मिल सकता है उन्हीं के साथ. अदरवाइज आप सिंगल ही अगर किसी तरह मैनेज कर पाए. आप सभी को कोई एक्सपीरियंस है, जैसे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो एक्सपीरियंस है उसको आप, जो हैप्पी मोमेंट है या कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट है, कोई भी इंसिडेंट आपको एक तरीके से स्वयं को बताना है, स्वयं से बताना है. लेट अस रीड व्हाट वी नीड टू डू. शेयर ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर. आपको अपने मेमोरेबल एक्सपीरियंस अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है. आपके पार्टनर हम सब हो सकते हैं. आप सभी को अपना कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, यू नीड टू शेयर विद अस. कहने का मतलब इट कुड बी एन एम्बैरेसिंग इंसिडेंट. ये कोई एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हो सकता है जहां पे आपको बहुत ही बुरा लगा हो. अ हैप्पी मोमेंट, ये बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल वाला समय हो सकता है. और इवन ए डिस्टेंट मेमोरी दैट हैज लेफ्ट अ मार्क इन योर माइंड. या कोई ऐसी याद जो कि आपके दिमाग पे आपके मतलब हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गया हो, कोई ऐसी बात. आस्क क्वेश्चन टू योर पार्टनर टू नो मोर अबाउट द इंसिडेंट. जब आप बताते हैं तो फिर उस बीच क्या होगा, we can ask some more questions about that particular incident to know about that. तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, you all need to, अभी तो फिलहाल बेटा ड्यूरिंग लॉकडाउन इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे दो ग्रुप में आप सभी को डिवाइड कर दूं. तो व्हाट वी कैन डू मैक्सिमम, आई कैन आस्क यू ऑल टू प्रिपेयर योर ओन वीडियो where you are trying to share your memorable experience, whether it would be the embarrassing incident or happy moment or any distant memory, it is on you. तो आप सभी को खुद का एक वीडियो प्रिपेयर करना है. तो अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी. और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा गया है, कहावत है. तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे आपकी जो लेंथ है, आपकी बोलने की जो फ्लुएंसी है वो भी इंप्रूव होगी. और कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी भी धीमे धीमे स्ट्रांग होने लगेगी. व्हेनेवर यू वुड बी ट्राइंग टू स्पीक, जब आप बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स ना मिले इंग्लिश के. हो सकता है आप कहीं ग्रामेटिकल एरर करें. हो सकता है कि कहीं आपकी फ्लुएंसी कहीं हिचकिचाएं, हकलाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी. बट जब आप ये करना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे, एक दिन एक रात में नहीं खत्म होगा, बट हाँ धीमे धीमे इट विल बी रिमूव्ड, इट विल बी एराडिकेटेड बाय योरसेल्फ, बाय यू ऑल ओनली. अपने आप ही चला जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा. तो जितना अभी समझाया, ये कन्वर्सेशन पढ़ने के बाद आपको कैसे खुद का एक इंसिडेंट बताना है, ये समझ में आया.
Yes, sir. कुछ लंबा मैं बोल Yes, गया, ऐसा sir. तो नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आया और बस आप सुन ले No, गए. sir. आ गया. So अब it is on you that कि whether you are going to prepare your own video or not. अगर आप prepare करेंगे then I'll look into that, and if I would be getting fine then also I'll upload it on the YouTube channel of your school, जो कि हमेशा के लिए आपके जब स्कूल के YouTube चैनल पे अपलोड होगा तो दैट मीन्स जब आप बड़े होंगे या बहुत बड़े होंगे या बुढ़े हो जाएंगे तो भी आपकी वीडियोस वहां पे पड़े रहेंगे. तो इट कैन बी अ मेमोरेबल इंसिडेंट. तो आप एक अच्छे से वीडियोस बनाएं और जो भी स्पीकिंग जंक्शन वाले वीडियोस रहेंगे उसको मैं जरूर अपलोड कर दूंगा. हाँ, लेकिन वो वीडियोस थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि केवल 30 सेकंड का या 40 सेकंड का छोटा सा वीडियो बनाएं. आप 2-4 मिनट का इंसिडेंट आप जरूर बताएं. तो स्पीकिंग जंक्शन से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत कहीं पे लग रहा है तो पूछ सकता है. No, sir. तो बेटा आप चलते हैं लिसनिंग जंक्शन की तरफ. अब इसके बाद जो स्पीकिंग जंक्शन में जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ. अभी आप सभी का होमवर्क एक तरीके से आप लोग का एक असाइनमेंट है कि आप लोग को अपना वीडियोस बनाना है. ओके. Yes, sir. The next section is the listening junction. Listening junction में क्या है? Some neighbors of the Walmunde are talking about the little Desiree. जो वालमुंडेस के जो मैडम वालमुंडे हैं उनके नेबर, उनके जो पड़ोसी हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? They are talking about the little Desirees. वो जो डेजरी के बच्चे को, जो किसी के बच्चे को उसके लिटिल के नाम से लिटिल डेजरी यानी डेजरी के बच्चे के बारे में बात कर रही है. राइट आफ्टर शी वाज फाउंड इन द शैडो ऑफ द स्टोन पिलर. आखिर वो लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग एंड आंसर दीस क्वेश्चन. आपको सुनना है कि आखिर वो आपस में क्या बातचीत कर रही हैं और फिर उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो मैं जो स्क्रिप्ट है वो आपस में क्या बातचीत कर रहा हूं मैं उसको पढ़ना शुरू करूं. मैं उसको यहाँ पे आपको शो नहीं करूंगा. आई विल रीड द लिसनिंग स्क्रिप्ट. वो लिसनिंग स्क्रिप्ट है. यू ऑल नीड टू लिसन बाय योरसेल्फ. You don't need to read, you need to listen. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Let me open the listening script. Okay. बड़ा समय कम है, जल्दी से करते हैं. चलिए ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेबर एलेक्स नाम का कोई पड़ोसी है. वो क्या बोलता है? थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है. कोई नेबर एलेक्स नाम का नेबर है. वो किसी एलानी नाम के नेबर से बात करता है. हेलो एलेनी, वेयर आर यू ऑफ टू? आखिर तुम कहाँ जा रही हो? नेबर. मैं हिंदी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में लिसनिंग स्क्रिप्ट है तो अभी गलती से मैंने बोल दिया. आप सभी को इंग्लिश में ही सुनना है, फिर क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप देना है. नेबर एलानी. देन जो नेबर एलानी ने रिप्लाई किया, थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बात अलग है. हाय एलेक्स, आई एम गोइंग टू द डेयरी फार्म टू गेट सम फ्रेश क्रीम. आई एम मेकिंग सम पुडिंग फॉर द Walmundes. Never Alex. Then never Alex. I see. Is there a special occasion? I see. Is there any special occasion? Never Elani. फिर वो क्या जवाब देती है? Oh, have not you heard? Oh, have you not heard? The Walmundes have adopted the baby that was found abandoned near the pillar. Neighbor Alex reply क्या करता है? Oh yes, the baby well. That is a really great news. Dear Madam Walmunde must be very happy. The neighbor Elani, sorry, Alex नहीं, Elani क्या बोलती है? Oh, she's overjoyed. You know how she loves children. The Almighty has finally blessed her with her own. The neighbor Alex क्या बोलता है? Well, it is not exactly her own. In fact, from what I hear, no one really knows who the baby belongs to. Neighbor
एलानी फिर रिप्लाई करती है, दैट इज ट्रू, आई हर्ड सम ऑफ देम से दैट इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पार्टी ऑफ टेक्सेंस। टेक्सेंस आपके वो जो ब्लैक कैटेगरी के लोग थे, उनके उनको कहा जाता था। एंड नेबर एलेक्स, नेबर एलेक्स क्या बोलता है, आई हर्ड दैट टू, मैंने भी सुना है, बट आई हैव माई डाउट्स, लेकिन मुझे मेरा खुद का संदेह है। व्हाई ऑन अर्थ वुड अ पार्टी ऑफ टेक्सेंस लीव देयर चाइल्ड इन आवर विलेज? आई थिंक इट बिलोंग्स टू समवन फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ। द नेबर एलानी बोलती है, समवन फ्रॉम विलेज, दैट इज audacious. Why would you think of such a thing? Then neighbor Alex बोलता है, well, think about it. Only the people in the village knew that the Walmunders have been waiting a baby of their own. Don't you think it is too much of a coincidence that the baby was found right near the Walmunde farm? क्या आपको ये मतलब केवल गांव के लोगों को ही पता है कि मैडम वॉलमुंडे किसी बेबी की तलाश में है और उसका वेट कर रही है, बताया जाता है। देन नेवर एलाइन क्या बोलती है, एलेनी, I never looked at it, I never looked at it that way. Now that you mention it, मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा जो कि आपने मेंशन किया। नेवर एलेक्स बोलता है, exactly, moreover, we all know that the Walmundes are one of the kindest people in the village. The person who left the baby must have wanted to be taken care of, so he left it there. Then never Alani बोलती है, oh my Alex, oh my Alex, you have an entire theory in place. It does make me wonder. You have an entire theory in place. It does make me wonder. But you know what? I'm not going to bother myself with this. I'm just happy for dear Madam Walmunde, and she says it's indeed a divine providence. So that's all. That is the listening script. What you all. तो बेटा जो लिस्टिंग स्क्रिप्ट है वो आप लोगों ने सुना होगा, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो मैं एक बार फिर से रीड कर दूं, एक बार क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाई इज एलेनी गोइंग टू द डेयरी फार्म? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकता है? व्हाई इज एलेनी गोइंग टू द डेयरी फार्म? यस अभिषेक, अभिषेक पांडे आप बताइए। यस सर। Eleni going to dairy farm for to get some cream. Eleni goes to dairy farm to get some fresh. Paddy. To get some fresh cream. I'm वहां पे पूछता है ना, हेलो एलेनी, वेयर आर यू ऑफ टू? वेयर आर यू ऑफ टू? तो एलेनी क्या बोलती है, हाय एलेक्स, आई एम गोइंग टू द डेयरी फार्म टू गेट सम फ्रेश क्रीम। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाई इज एलेनी गोइंग टू द डेयरी फार्म? एलेनी वाज गोइंग टू द डेयरी फार्म टू गेट सम फ्रेश क्रीम। ओके, फ्रेश क्रीम। यस सर। व्हाई डज एलेनी थिंक दैट मैडम वॉलमंडे विल बी ओवरजॉयड? आखिर एलेनी कैसा क्यों सोचती थी कि मैडम वॉलमंडे काफी ज्यादा ओवरजॉयड, काफी ज्यादा खुश होगी? She is overjoyed. You know how she loves children. The Almighty has finally blessed with her own. ये एलेनी ने बोला था। तो इसका आंसर आप लोग एक बार सोचे, देने की कोशिश करें। यस सर। ये सब से कह दो। Eleni thought that Madam Walmunde will be overjoyed after adopting the child as her own child. एलेनी, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। एलेनी thinks that Madam Walmunde must be overjoyed because she loved children a lot, but she did not have any of her own. वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बट उनके पास कोई बच्चा नहीं था। So Eleni think that Madam Walmunde must be overjoyed. Okay, बहुत easy question है। What are Alex ideas on the parentage of the baby? जो Alex के ideas थे parentage of the baby, वो क्या थे? Alex thinks that the child's parents must be from the village. जो Alex ही तो बोला था कि जो बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो
बिलेट से ही होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बताया था ना, क्या क्या हो सकता है? बिकॉज Because Madam Almonde haven't any child. only the villagers knew, only the villagers knew, केवल villagers को ही पता था कि मैडम मॉलमंडे इज वेटिंग फॉर अ चाइल्ड। ये लिखा गया था ना, वो उसने वो लिस्निंग स्क्रिप्ट में साफ साफ बताता है। ऐसा आखिर पूछा, वो एलेनी पूछती है ऐसा तुम क्यों आखिर ऐसा कैसे सोचते हो, तो साफ साफ उसी स्क्रिप्ट में ही लिखा गया है, उसी स्क्रिप्ट में ही बताया गया है कि एलेक्स थिंक्स दैट द child's parents must be from the village and not someone from the Texas who left behind. Why? अब इसका आंसर because इसमें लिसनिंग स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, because only the villagers knew that Madam Molmunde is waiting for a child, okay, and she doesn't having any her own. So next question is how does Alex justify the doubts? जो एलेक्स का जो डाउट है वो कैसे उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया? बेटा जो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अभी थर्ड क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया। एक्चुअल में पेरेंटेज ऑफ द बेबी का जो रीजन था, जो एलेक्स का आइडियाज था, वो क्या था कि वो विलेजर्स ही हो सकते हैं, कोई मतलब टेक्सास कैटेगरी का नहीं हो सकता। इस बात को लेकर के जब वो एलेनी ने पूछा ऐसा कैसे कह सकते हो, तो उसने जस्टिफाई किया था। क्या जस्टिफाई किया था? कि ओनली विलेजर्स नो दैट कि मैडम मॉलमंडे इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड। According to Alex, it was someone from the village who deliberately left it near the Walmunder's farmhouse, knowing that they would take care of it, as everyone knew how kind-hearted they were and how they yearned for a child. आखिर वो कितने kind-hearted हैं और बच्चे के लिए कितने लालायित हैं, ये विलेजर्स को पता था। तो इस तरह कह के उसने जस्टिफाई किया था अपने डाउट्स को। The last question is Alex able to convince Eleni about his suspicions? Is Alex able to convince Eleni about his suspicions? जो एलेक्स है वो क्या एलेनी को कन्विंस कर पाया अपने सस्पिशियस को लेकर के, यानी जो उसके मन में डाउट थे या जो तर्क आ रहे थे? Yes, sir. अब आपको तर्क सहित इसको आंसर बताना है। डायलॉग्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन है उसमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आपको तर्कपूर्ण लग रहा है? क्या वो कंप्लीटली कन्विंस हुई थी एलेनी या नहीं, ये बताइए। Completely नहीं। नो, शी इज नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड। जस्टिफिकेशन क्या इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इट डज मेक मी वंडर। ये क्या बोलता, ये कन्वर्सेशन में से लिया जा रहा है। क्या किस वजह से हम ये ऐसा कह सकते हैं? कन्वर्सेशन में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? वहां पे लास्ट में कहती है एलेनी, क्या कहती है? इट डज मेक मी वंडर, ये आखिर मुझे बहुत ही ज्यादा वंडर, आश्चर्य करती है। बट यू नो व्हाट, लेकिन आपको पता है क्या? आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर माई सेल्फ विद दिस। मैं अपने आप को इसके साथ परेशान नहीं कर सकती, बॉदर नहीं कर सकती, इंगेज नहीं कर सकती, ऐसा एलेनी ने कहा। तो as per this statement, as per this sentence in the conversation, we can say that ki Alex was not able to convince Eleni completely. Okay, Yes, sir. so this is how also be completed, this is how also be answered all these questions from this section. I think Anurag, you are late actually. Your session is about to be end. You need to go through the recorded video for today's class. But today we have completed the speaking junction along with the listening junction. तो ये दोनों sections आज हमारा complete हुआ. In the next class we would be moving ahead with the writing junction or comprehension junction. 2 days we need to complete this chapter. 2 sessions we need to complete this chapter. So be ready. Before the comprehension junction, I'll send you the recorded video having the explanation of the comprehension junction. Let me check that key, what is there in the comprehension junction. I think there is a poem. Yeah. So what I'll do for the comprehension junction, I'll prepare a video and will send you having the explanation, having the translation of Hindi translation of this poem in that video. You all need to go through that. After watching the recorded video, you all need to
answer these questions. So during the live class, we will be discussing the question answer, not this. So once I'll send the recorded video, thereafter I will be taking the comprehension junction section. I'll try to make it by tomorrow, and so that we can, day after tomorrow, we can complete this section. If I won't be able to record the video, then day after tomorrow we would be discussing, we would be completing the writing junction of this chapter. Okay. Yes, sir. So that's all for today. Yes, sir. That's all for today. If you are having any query, any doubt, let me know. No, sir. Okay. No, sir. So that's all from today. Goodbye, everyone. Goodbye, sir. Goodbye, sir. सभी को समझ में आता भी है? बस यस सर, नो सर, आप लोग कम बोलते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश में तो आप ही लोग को बोलना चाहिए। आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो का मुझे इंतजार रहेगा। Yes, sir.